Good morning, friends. Let's proceed ahead. We are kickstarting with a new chapter, Cost Ledger Accounting. Let me give a quick background to the chapter before we start with the journal entries. It is another chapter where you might not require too much of revision if you understand the concept. First thing, whatever cost you have ascertained in a material chapter or a labor chapter or overhead chapter, don't you think that the cost which you have ascertained needs to be recorded? Yes, there should be some place where a cost ascertained is recorded in the books of accounts and you generate certain reports based on it. Our job in the syllabus is not to generate a report. It should be, but it is not a part of syllabus. But cost ledger accounting is a system where whatever cost we have ascertained, we will be recording that particular cost in our books of accounts. बेंच ऐसा टेढ़ा क्यों किए? किसने किया? So a cost that we have ascertained should be recorded. So objective of this chapter is to record the ascertained cost. Number one. Number two, second point. There are certain businesses or industries, or you may say sectors, which are of strategic importance from nation's point of view. I said certain businesses are important from nation's point of view, from the point of view of managing price level in a country, that is inflation. For those industries, government has to ensure that there is no unwanted price increase by producers of goods and services. Imagine a situation where producers of goods and services start increasing their selling price artificially matlab, without any increase in their input cost or without any increase in their raw material cost, whatever you want to say. That situation will be extremely dangerous for a economy. So government ने क्या किया है? कुछ specific sector की जो companies है, having a turnover above a specified limit, the limits are given in the section 148 to the Companies Act. गवर्नमेंट ने सेक्शन 148 में कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को बोला है और उनका बकायदा कॉस्ट ऑडिट करवाया जाएगा. वो सीए नहीं करेगा. Who will do that cost audit? Cost accountant will do the cost audit. I hope you are clear on that. Are you clear on this? Who will be doing audit of it? Cost accountant will do the audit of it. Clear? Now we have to learn how do we maintain books of accounts and how do we pass various entries and ledger accounts for this entire scheme of things. So here we go with reference to it. It's a wonderful chapter. Let's look at it. Cost accounting system. So we kickstart with the cost accounting system. As I told you, two primary reasons why we are learning this chapter. Whatever cost we have ascertained needs to be recorded. Number one. Number two, government requires certain businesses to keep proper records of cost. कौन से कंपनीज है जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है? ये आपके शायद ऑडिट के सिलेबस में आएगा. अतुल कैमरा. सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में यहां पर मैंने दिया है ऑडिट के सिलेबस में सेक्शन 148 या लॉ के सिलेबस में 148 डिटेल में है. यहां पर नहीं है कॉस्टिंग में, जस्ट बट मैं लिंकिंग कर रहा हूं लॉ और ऑडिट के सिलेबस से. सो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं विच विल हेल्प यू टू असर्टन द कॉस्ट एज वेल एज जनरेट सर्टन रिपोर्ट्स. ये किसके लिए एप्लीकेबल है?
For every company which is engaged in providing goods specified in the sector, specific sectors है, टेबल ए में वो सेक्टर्स के नाम दिए हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलेटेड सेक्टर्स, और उनका टर्नओवर जो है ओवरऑल बेसिस पे 35 करोड़ और मोर होना चाहिए, एंड दे हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स एज गिवन इन द फॉर्म नंबर CRA 1, एंड फिर ऑडिट करवाना है। ऑडिट अतुल अतुल कैमरा का इशू है, तो उनको कॉस्ट ऑडिट करवा के लेना है। अकाउंट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करना है तुमको? जब तुम्हारा टर्नओवर 35 करोड़ के ऊपर जा रहा है। कितने के ऊपर? 35। अब ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स, टेबल ए के लिए ये, अच्छा टेबल बी 35 करोड़, हाँ टेबल ए एंड टेबल बी दो अलग अलग सेक्टर्स है, तो उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। 35 करोड़ के ऊपर गया तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। लेकिन ऑडिट का जो क्राइटेरिया है वो अगले पेज पे देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिमिट अलग है, ये रूल नंबर 3 है। रूल 3 रिकॉर्ड कब मेंटेन करना है वो बोलता है। रूल 4 क्या बोलता है? ऑडिट कब करवा के लेना है तुमने। सो व्हेन डू यू टेक अ ऑडिट? व्हेन योर ओवरऑल टर्नओवर इज 50 करोड़ और मोर फॉर अ टेबल ए, टेबल बी के लिए 100 करोड़ और मोर, एंड कुछ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है उनका टर्नओवर यहाँ पर टेबल ए के लिए 25 करोड़ के ऊपर गया तो, और टेबल बी के लिए 35 करोड़ के ऊपर गया तो आपको क्या करवाना पड़ेगा बच्चों? ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑडिट करवाना है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए अकाउंटिंग का। जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैकेनिज्म सीखा था कि भाई इवेंट्स होंगे, इवेंट में से हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, वो ट्रांजैक्शन को हम प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, सब्सिडरी बुक्स रहेंगे, फिर वहां से हम लेजर बनवाएंगे, उससे ट्रायल बैलेंस बनवाएंगे। आवाज का थोड़ा इश्यू लग रहा है। सो ट्रायल बैलेंस बनवाएंगे, वहां से हम फिर क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट्स बनवाएंगे। ये जो तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फ्लो तुमने देखा था, वो फ्लो का एडवांटेज क्या था सबसे बड़ा? accuracy of recording. When you follow double entry bookkeeping system, the biggest advantage is you come to know accuracy. आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो उससे एक्यूरेसी समझ में आता है। अदरवाइज असेट्स लायबिलिटीज ऐसे भी हम देख के लिख सकते हैं ना, स्टेटमेंट बना सकते हैं असेट्स और लायबिलिटीज का, बट वी माइट स्किप सर्टेन ट्रांजैक्शंस, एंड सर्टेन ग्रुप ऑफ कंपनीज might get an advantage to manipulate the books of accounts. They don't need any time pass auditor also for that. They can just do that, like if there is no bookkeeping system. So एक प्रॉपर बुककीपिंग सिस्टम का एडवांटेज मेरे को एक्यूरेसी का आता है। तो यहां पर भी कॉस्टिंग में हम ऐसा प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना चाहते हैं जहां से इवेंट से लेके फाइनल स्टेटमेंट तक पूरा लिंक रहेगा। उस लिंक को हम फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। अगर गलती से वर्ड आपने, लॉ में भी है, ऑडिट में भी है, लॉ के सिलेबस में भी ऑडिट ट्रेल है। 1 अप्रैल 2021 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है कि आपके पास ऐसा ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए अकाउंटिंग के लिए जो पूरा ऑडिट ट्रेल मेंटेन रखेगा, और जो भी ट्रांजैक्शंस आप एडिट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, उसका लॉग 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 उसके डिटेल्स मेंटेन किए जाएंगे। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ये सारे डिटेल्स हम प्रॉपरली मेंटेन करें। उसके लिए दो चॉइसेस है अपने पास। कौन से दो चॉइसेस है बच्चों? देखो क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, टू सिस्टम्स। इंटीग्रेटेड सिस्टम जहां पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को एक साथ मिक्स करेंगे, और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग। सो वी आर गोना लर्न नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फर्स्ट एंड देन वी गो टुवर्ड्स अ इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में you keep two sets of books. Which are the two sets of books that you keep? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सेट है और दूसरा सेट बोलो, कॉस्ट अकाउंटिंग का सेट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। वी विल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्यूरेसी, डबल एंट्री इंश्योर करना है तो मुझे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट वो भी चाहिए। सी व्हेन यू एंश्योर, एक्यूरेसी का मतलब क्या है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। पक्का कि नहीं? अब मुझे बोलो, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट पॉसिबल है क्या? इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बाय डिफॉल्ट नो। क्यों?
कॉस्टिंग में पर्सनल अकाउंट का हमें जरूरत नहीं होता है। कॉस्टिंग में डेटर, क्रेडिटर, बैंक अकाउंट, असेट अकाउंट, इनका जरूरत ही नहीं पड़ता कॉस्टिंग में, बिकॉज कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू असर्टेन द रेवेन्यू। तो अगर आपको कॉस्ट असर्टेन करना है और रेवेन्यू असर्टेन करना है, मतलब क्या है? नॉमिनल अकाउंट है वो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने इतना तो सीखा होगा कि नॉमिनल, रियल, पर्सनल, ऐसे सारे टाइप के अकाउंट रहते हैं। अब कॉस्टिंग में हमको किसकी जरूरत है सिर्फ? अरे किसकी जरूरत है? नॉमिनल अकाउंट। तो रियल और पर्सनल अकाउंट की जरूरत है ही नहीं। अगर वो अकाउंट निकाल दिए तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली कैसे होगा? क्योंकि मुझे एक्यूरेसी इंश्योर करनी है। वी वांट टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ व्हाटएवर वी रिकॉर्ड इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाउ विल एक्यूरेसी बी इंश्योर्ड? Accuracy will be ensured only and only if double entry is matched. So, under non-integrated system, listen to this carefully. Under non-integrated system, to ensure debit is equal to credit or vice versa, credit equal to debit. डेबिट इक्वल टू क्रेडिट या क्रेडिट इक्वल टू डेबिट, ये इंश्योर करने के लिए हम एक एडिशनल अकाउंट ओपन करेंगे, लेजर अकाउंट, जिसका काम ही है कि जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स है उनका दूसरा इफेक्ट देना। वी वांट टू गिव सेकंड इफेक्ट ऑफ व्हाट? पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स। आर यू क्लियर विद दैट? पर्सनल और रियल अकाउंट का हमें इफेक्ट देना है। तो वो इफेक्ट देने के लिए कौन सा मैंने सिस्टम बोला बच्चों? एक अकाउंट ओपन करेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। उस अकाउंट का नाम है कॉस्ट लेजर अकाउंट और अ जनरल लेजर अकाउंट, so that Virat Kohli is a representative of Indian cricket team as a captain. So like that, you have a cost ledger account which is a representative of all your personal account, all your real account. तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर उसको हम बोलते हैं कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम। मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों? एक एडिशनल अकाउंट ओपन करेंगे। क्या नाम है उस एडिशनल अकाउंट का? कॉस्ट लेजर अकाउंट। तो हम मेजर लेजर्स क्या ओपन करेंगे? स्टोर्स लेजर विच विल कीप अ मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो, सारा का सारा मटेरियल किधर से रूट होगा? स्टोर्स लेजर के थ्रू रूट होगा। जो भी आप जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में चालू करोगे उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, WIP लेजर। प्लीज याद रखना, सिलेबस में हम एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। रियल लाइफ में हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट होगा। स्टोर्स लेजर मतलब इट इज नॉट वन लेजर, अ लेजर इज अ बुक कंटेनिंग लेजर अकाउंट्स। तो मेरे पास अगर 50 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स है तो कितने लेजर अकाउंट बनेंगे? 50। सिलेबस में नहीं, तो आप छोड़ दोगे ना, आओगे नहीं कल से। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक ही लेजर बनाते हैं। इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है? सबका मालिक एक है। That is stores ledger is a representative like a Virat Kohli captain. So stores ledger, WIP ledger, finished goods ledger and ये जनरल लेजर ओपन किया। किसके लिए ओपन किया है मैंने? रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए मैंने कौन सा अकाउंट ओपन किया? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उसका काम ही क्या है जनरल लेजर एडजस्टमेंट का? रियल अकाउंट एंड व्हाट? पर्सनल अकाउंट्स का इफेक्ट देने का, बस सिंपल। तो ये अकाउंट्स ओपन करेंगे, इसके साथ साथ और अकाउंट रहेंगे। स्टोर्स लेजर रहेगा, वेजेस रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस के लिए, फैक्ट ओवरहेड जो आप इंकर कर रहे हैं ओवरहेड अकाउंट रहेगा। मैंने पिछले 2-3 चैप्टर में ओवरहेड अकाउंट ड्रॉ करके भी आपको दिखाया था। फिर क्या रहेगा? WIP अकाउंट रहेगा, एडमिन ओवरहेड अकाउंट, फिनिश ओवरहेड अकाउंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स कॉस्टिंग P&L एंड सारे रियल और पर्सनल के लिए क्या किया मैंने? GLA अकाउंट ओपन किया। किसके लिए किया? ये डबल एंट्री मैच होने के लिए। आर यू क्लियर विद द लेजर अकाउंट्स? क्लियर? अब ये सारे लेजर अकाउंट की जर्नल एंट्रीज हमें समझनी, बट उसके पहले सिंपल फ्लो समझो। ये बेसिकली क्या है? कॉस्ट शीट जो तुम प्रिपेयर करते हैं ना, उसी फ्लो में हम क्या करने वाले हैं? अकाउंटिंग करने वाले हैं। कुछ ऐसा तूफानी नहीं है ये। तुम्हारा जो कॉस्ट शीट का फ्लो था, कॉस्ट शीट में फ्लो क्या था? यू रिकॉर्ड अ डायरेक्ट कॉस्ट फर्स्ट एंड देन यू रिकॉर्ड indirect cost.
You record direct cost first and thereafter you get a indirect cost. तो यहां पर भी वही फ्लो करना है हमें। पहले क्या करना है, डायरेक्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करना है पहले और फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। आर यू क्लियर? सो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट को बिल्कुल याद मत रखना। देखो देखो पहले डायरेक्ट कॉस्ट, मुझे बोलो जब भी आप डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन करते हो क्या क्या आता है डब्ल्यूआईपी में? डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन जब करना है, रॉ मटेरियल डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ कंप्लीशन, वेजेस ऑब्वियसली द मोमेंट यू टॉक अबाउट डब्ल्यूआईपी देयर इज अ डिग्री ऑफ, बट पहले हम क्या करते हैं, सारे के सारा जो कॉस्ट है हर एक जॉब अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम क्या करेंगे, जॉब अकाउंट या वर्क ऑर्डर अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन में वी एग्जीक्यूट अ वर्क ऑर्डर कि ये वर्क ऑर्डर है फॉर फिनिश गुड्स एक्स वाई जेड, क्वांटिटी सो एंड सो, इसे हमें प्रोड्यूस करना है इतना इतना क्वांटिटी। तो उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स इंकर किए जाते हैं। ओवरहेड्स तो ऐसे वर्क ऑर्डर वाइज नहीं इंकर होते, ओवरहेड वर्क ऑर्डर वाइज एब्सॉर्ब किए जाते हैं, ओवरहेड्स इंकर टोटलिटी में होता है। याद रखना डिफरेंस, ओवरहेड्स आर इंकर्ड इन टोटलिटी, ओवरहेड्स आर नॉट इंकर्ड जॉब बाय जॉब, दे आर एब्सॉर्ब बाय जॉब। तो हर एक जॉब का कौन है रे रिप्रेजेंटेटिव? WIP control account. So WIP control account is a representative of all the jobs. तो देखो मटेरियल, वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड, इन सारा का अक्यूमुलेशन कहां पे होने वाला है? WIP में अक्यूमुलेशन होगा। फिर WIP से जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो गए, फिनिश हो गए, वो कहां पे जाएंगे? फिनिश गुड्स अकाउंट में जाएंगे, वहां पर एडमिन ओवरहेड्स भी आ जाएगा। ये ब्रॉड फ्लो है। फिर फिनिश गुड्स से गुड्स कहां पे चले जाएंगे? जब सेल हो जाएंगे तब, जब सेल हो जाएंगे तब COGS में चले जाएंगे, वो वहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका फ्लो, डिटेल्ड फ्लो देखो। पहले पहले मटेरियल अकाउंट, अकाउंट बाय अकाउंट चलते हैं। ये मैंने यहां पर पूरा ड्राइंग किया है। मटेरियल, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, कुछ भी बोलो आप। इसमें कौन सा मटेरियल आता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? दोनों। सारा ये मटेरियल का चैप्टर है, सारा का सारा मटेरियल इधर आएगा। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल डेबिट पे दिखेगा, उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती, बैलेंस रहता है। फिर मटेरियल तुमने परचेस किया, कौन सा? DM IM, डायरेक्ट मटेरियल एज वेल एज, तुमने मटेरियल परचेस किया। चलो अज्यूम करो तुम 11th स्टैंडर्ड में, एंट्री क्या पास करेगा तुम? परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 11th में लेवल उतना ही ना। अब अपने पास बैंक अकाउंट है क्या? अपने पास सप्लायर अकाउंट है क्या? फिर क्या है अपने पास? जनरल लेजर अकाउंट है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, और हमें रिस्पेक्टिव मटेरियल को डेबिट करना है, बट अपने पास रिस्पेक्टिव मटेरियल अकाउंट है क्या? नहीं। अपने पास कौन है उसका? कैप्टन। कैप्टन का नाम क्या है? स्टोर्स लेजर अकाउंट। विराट कोहली बोलता है, तो विराट कोहली कैप्टन नहीं है? फिर अच्छा, इंडिया की टीम से निकाल दिया उसको? टीम में है, कैप्टन नहीं। ओके, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडिया? रोहित शर्मा। ओके, सो रोहित शर्मा इज इक्वल टू स्टोर्स लेजर अकाउंट। आई वाज नॉट अवेयर। सो जैसे हम एक रिस्पेक्टिव मटेरियल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कहां पे करेंगे? GLA को। लेकिन मटेरियल अकाउंट है क्या अपने पास? नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक मटेरियल का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हमने ओपन किया। क्या नाम दिया मैंने वो रिप्रेजेंटेटिव को? स्टोर्स लेजर। तो बोलो जर्नल एंट्री क्या होगी? स्टोर्स लेजर अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। तो देखो स्टोर्स लेजर को डेबिट किया, वो देखो दूसरा एरो कहां पे जा रहा है? GLA को क्रेडिट कर लिया मैंने। तो बच्चों जब भी आप मटेरियल परचेस करोगे क्या करोगे? स्टोर्स लेजर डेबिट टू GLA। फिर मटेरियल के साथ क्या करोगे? मेरे पास मटेरियल है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, मटेरियल इश्यू करोगे ना आप। स्टोर्स में मटेरियल आ गया तो आप इश्यू करोगे, आप ये टाइम पास नहीं करोगे मेरे पास मटेरियल है तुम्हारे पास क्या है। तो मटेरियल इश्यू करोगे तो किसको इश्यू किया जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल है तो रिस्पेक्टिव जॉब को इश्यू होगा। तो जिस जॉब को मटेरियल इश्यू हुआ उस जॉब को हम डेबिट करेंगे। बट हमारे पास जॉब है क्या? हमारे पास उसका रोहित शर्मा है। क्या नाम है रोहित शर्मा का? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट करना है। जब मटेरियल इश्यू किया तो मैंने कहां पे डेबिट किया? WIP कंट्रोल अकाउंट।
क्रेडिट कहां पे करेंगे? स्टोर्स को, क्योंकि स्टोर्स का बैलेंस कम हो गया। फ्लो समझ लो, बहुत आसान है। सो डायरेक्ट मटेरियल का एंट्री क्या किया मैंने? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई कांट हियर। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया। इनडायरेक्ट मटेरियल किसके लिए इश्यूज? इनडायरेक्ट मटेरियल इज ओवरहेड ना। इनडायरेक्ट मटेरियल कैन बी इश्यूड फॉर प्रोडक्शन, indirect material can be issued for administration, indirect material can be issued for selling and distribution। अब मैंने यहाँ पे चार्ट में सिर्फ एक ही दिखाया है, we have charts। सो मटेरियल हमने इश्यू किया है, देखो यहां से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, किधर गया? फैक्ट्री ओवरहेड। तो रिस्पेक्टिव ओवरहेड को डेबिट होगा, बट अपने पास रिस्पेक्टिव ओवरहेड है क्या? उसका क्या है? रोहित शर्मा है उसका, तो किधर डेबिट किया हमने? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट इज लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सिंपल भाषा में बोलूं, तुम्हारे पास 15 डेटर है, तुम बैलेंस शीट में डेटर 1 2 3 4 5 6 लिखता है क्या? बैलेंस शीट में क्या लिखता है? सन्ड्री डेटर्स, टोटल डेटर्स काइंड ऑफ थिंग। सो दिस इज टोटल अकाउंट। तो आई इशूड द इनडायरेक्ट मटेरियल एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट या एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर पे क्रेडिट हो गया। तो ये ऐसे मटेरियल का बैलेंस क्या है तुम्हारा? कम होते जाएगा जैसे जैसे तुम इश्यू करोगे। इश्यू मतलब कंजम्पशन करोगे, तो स्टोर्स लेजर में बैलेंस रहेगा। अगर बच्चों मटेरियल रिटर्न हो गया तो उल्टा करो ना एंट्री। रिटर्न विल बी ऑफ टू टाइप, return to the supplier and return from shop floor to stores। are you clear with that? ठीक है, ये हो गया कौन सा अकाउंट? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल परचेस हो गया, मटेरियल वहां से इश्यू भी हो गया। फिर क्या करेंगे हम? वेजेस में जाएंगे। वेजेस परचेस नहीं होते, बेसिक्स ऑफ सेंस। वेजेस में ओपनिंग बैलेंस नहीं रहता। बच्चा बोलता सर नहीं रह सकता ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, पकड़ पकड़ के मारूंगा, वो वेजेस का बैलेंस नहीं है। प्रीपेड वेजेस अकाउंट माइट हैव डेबिट बैलेंस, तो वो डेबिट बैलेंस आप वेजेस को ट्रांसफर करो। एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस विल हैव क्रेडिट बैलेंस बिकॉज लायबिलिटी है। यू ट्रांसफर दैट आउटस्टैंडिंग वेजेस टू वेजेस। एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस। और जब भी आप वेजेस पे करोगे एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट बैंक है क्या अपने पास? बैंक का क्या है? रोहित शर्मा। क्या है वो रोहित शर्मा का नाम? GLA। एंट्री क्या किया मैंने? वेजेस अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पे चला गया, तो ये वेजेस आ गए। फिर कुछ वेजेस एब्सॉर्ब हो जाएंगे डायरेक्ट करके रिस्पेक्टिव जॉब के अंदर। एंट्री क्या होगा? WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस। कुछ वेजेस एब्सॉर्ब हो जाएंगे इनडायरेक्ट करके। इनडायरेक्ट वेजेस कहां पे जाएंगे? आइदर फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन ओवरहेड। मैंने यहां पे एक ही लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड में एब्सॉर्ब हो गए, है ना। तो ओवरहेड अकाउंट में क्या क्या आ गया? मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया। इनडायरेक्ट, वैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएंगे। तो डेबिट साइड ऑफ ओवरहेड इज व्हाट? ओवरहेड्स इंकर्ड। क्रेडिट साइड इज ओवरहेड एब्सॉर्ब। जैसे जैसे प्रोडक्शन हो जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, हे आइटम और हे जॉब कितना खर्चा होना चाहिए था? वो कितना खर्चा होना चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड ओवरहेड। उसका और एक नाम क्या है? रिकवर्ड ओवरहेड। एब्सॉर्ब्ड, रिकवर्ड, स्टैंडर्ड, ऑल आर सेम, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग नाम है, वैसे इसके भी अलग अलग नाम है। वैसे यूट्यूब वगैरह पे ऐसे भगवान का नाम वगैरह पहले लेना चाहिए, तो फिर बच्चे राधे राधे ये वो ऐसे टाइम पास करना चाहिए भगवान के नाम पे। भगवान, देश, माँ बाप, ऐसा करके बच्चों के इमोशंस को आप क्या करो? कंट्रोल करो। तो राधे राधे। हाँ, जय हिंदुस्तान। भारत माता की जय। बीजेपी वाला जय श्री राम। हाँ, खुश। सो सीए कर रहे हो, अपॉलिटिकल रहो, रिलीजियस मत रहो अपनी। जय आइजिया बोलो। डेबिट साइड इज व्हाट? ओवरहेड्स इंकर्ड। आप कुछ भी बोलो ना उसको,
क्रेडिट साइड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड है, आपको जो लिखना है लिखो ना, मतलब वही है, कितना खर्चा होना चाहिए था. डिफरेंस बिटवीन द टू इज व्हाट? अंडर absorption or over absorption. Debit side is what? Overhead incurred. Credit side is overhead. Difference under or over absorption. When do you say under absorption? When absorbed overheads are lesser. That is a debit balance. Credit balance है तो over absorption. Treat कैसे करोगे? Accounting wise. Accounting wise treat कैसे करोगे उसको? Either it could be normal or could be abnormal. तो नॉर्मल है तो आप सप्लीमेंट्री रेट यूज करोगे, अब नॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएनएल को ट्रांसफर करोगे. अगर अमाउंट वेरी स्मॉल है तो आप उसको क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड करोगे, उसका जर्नल एंट्री भी आएगा. हैव पेशेंस. लेट्स अज्यूम ओवरहेड्स आर incurred are 5 lakh, overhead absorbed is 3,95,000. incurred कितना है? 5. absorbed कितना है? 395. तो गैप कितना है? 1,05,000 का गैप है. व्हाट इज इट? अंडर absorption इज 1,05,000. 1,05,000 इज व्हाट? अंडर absorption. क्या करोगे आप अज्यूम इट इज अ सप्लीमेंट्री रेट. मैंने ओवरहेड चैप्टर में एक्सप्लेन किया था. सप्लीमेंट्री रेट मतलब हमने 395 कंसिडर किया है कॉस्ट के अंदर, जबकि खर्चा कितना किया है? 5 लाख. और हम बोल रहे हैं डिफरेंस नॉर्मल है, दैट इज ये डिफरेंस अवॉइडेबल था, सॉरी अनअवॉइडेबल था. तो हम इसको क्या करेंगे? एडिशनल कॉस्ट करके ट्रीट करेंगे. सप्लीमेंट्री इज एडिशनल. वेयर विल यू ट्रीट एडिशनल कॉस्ट? आइदर डब्ल्यूआईपी में जो गुड्स है, यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट यूनिट्स. ओवरहेड चैप्टर रिकलेक्ट करो. वी फाइंड अ सप्लीमेंट्री रेट. हाउ डू यू फाइंड अ सप्लीमेंट्री रेट? अंडर ऑब्लिक ओवर absorption ड्यू टू नॉर्मल रीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स. प्रोडक्शन बोलो. तो फिर क्या करेंगे? डब्ल्यूआईपी में कितने इक्विवेलेंट यूनिट है, एफजी में कितने इक्विवेलेंट यूनिट है, और कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑलरेडी सेल हो गए, वो आपको प्रॉपर इक्विवेलेंट यूनिट्स ढूंढने पड़ेंगे. हाउ डू यू गेट इक्विवेलेंट यूनिट्स? फिजिकल यूनिट्स इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन. अब ये चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये चैप्टर में सब कुछ डायरेक्टली दिया रहता है कि दिस मच इज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, दिस मच इज ड्यू टू एबनॉर्मल. और नॉर्मल दिया तो उसका ब्रेकअप भी देना चाहिए. वो मैंने अभी तक सीए कोर्स में ये चैप्टर में देखा ही नहीं. वो सिर्फ ओवरहेड चैप्टर में, वो जो जिसने ओवरहेड चैप्टर लिखा था और जिसने ये चैप्टर लिखा था, दोनों का अभी तक झगड़ा मतलब मिलन नहीं हुआ है. ठीक है, ये चैप्टर में आपको आइदर एबनॉर्मल आएगा. नॉर्मल वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में देखा नहीं. ये चैप्टर में नॉर्मल, अंडर absorption और ओवर absorption होता ही नहीं है. मैं फालतू का एंट्री सिखाते रहता हूं हर बार. आया ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन आ गया तो तुम ही होगे जो सॉल्व कर पाओगे. तो अंडर absorption डेबिट साइड कितना है? 5 लाख. क्रेडिट साइड 3,95,000. 1,05,000 का गैप है. कौन सा रीजन है? अंडर. नॉर्मल रीजन. डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट समथिंग, एफजी अकाउंट डेबिट समथिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट समथिंग, जो गुड्स ऑलरेडी सेल हो गए, टू व्हाट? टू ओवरहेड अकाउंट और टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस है. क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करो? उल्टा कर. इफ इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन देन कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड अकाउंट. उल्टा है तो ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट. समझा क्या? तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. आर यू क्लियर? ओवरहेड्स कहां पे चले गए? डब्ल्यूआईपी में. डब्ल्यूआईपी किधर है? ऊपर है. डब्ल्यूआईपी में क्या क्या था? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था. डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी आया था मटेरियल अकाउंट से. फिर क्या आया? डायरेक्ट वेजेस आ गया. फिर फैक्ट्री ओवरहेड. कौन सा है? इंकर्ड या एब्सॉर्ब्ड? एब्सॉर्ब. और फिर नॉर्मल रीजन का अंडर ऑब्लिक ओवर absorption रहेगा तो भी आएगा. वो दिया नहीं. तो डेबिट साइड इज व्हाट? फैक्ट्री कॉस्ट. उसमें से कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो गए. जितने गुड्स प्रोड्यूस हो गए उनकी फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट इज मटेरियल प्लस लेबर, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. वो कहां पे चला जाएगा? एफजी को. एफजी को चला जाएगा क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस हो गए. एंट्री एफजी अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट. कौन सा अकाउंट डेबिट? एफजी. देखो ये जा रहा है, जा रहा है, आ गया इधर. एफजी अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट. एफजी में क्या है? ओपनिंग एफजी आ गया प्लस एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. ये क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट है.
एडमिन ओवरहेड जो भी रिलेटेड है, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस रह सकते हैं, प्राइमरी पैकिंग रह सकता है, R&D रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग रह सकता है, वो सारा का सारा चीज हम क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। किसमें एब्सॉर्ब करेंगे? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड के अंदर, है ना। सो वी हैव ओपनिंग फिनिश गुड्स, एड टू दैट व्हाट, फैक्ट्री कॉस्ट, एड टू दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये मेरा क्या आ गया रे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस प्लस एओएच। ये कौन सा एओएच है बच्चों? दिस इज एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। आर यू क्लियर? क्या आ गया मेरा? ये है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स, दैट इज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से कुछ गुड्स सेल हो गए तो उनकी सीओजीएस आप क्या करो, ट्रांसफर करो। कौन से अकाउंट को? कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू एफजी अकाउंट, और एफजी का बैलेंस रहेगा उधर। कॉस्ट ऑफ सेल्स को सीओजीएस आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी आ जाएंगे। कहां से आ रहे? एडमिन ओवरहेड अकाउंट में देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट वेजेस था, ये एडमिन ओवरहेड था। कोई भी ओवरहेड अकाउंट खोलो, डेबिट साइड क्या है? ओवरहेड। क्रेडिट साइड क्या होता है? ओवरहेड एब्सॉर्ब, बट एब्सॉर्प्शन अलग अलग जगह पे होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेयर आर दे एब्सॉर्ब्ड? WIP। एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, FG। एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जिस चीज में एब्सॉर्ब होने वाला है ना, उसको डेबिट कर, और ओवरहेड अकाउंट को क्रेडिट कर। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड बोला ना मैंने, तो ओवरहेड को क्या करेगा तू? क्रेडिट करेगा। डेबिट किधर ठोकेगा? रिस्पेक्टिव अकाउंट जहां पर ये ओवरहेड्स क्या होने वाले हैं? एब्सॉर्ब होने वाले। एडमिन ओवरहेड आ गया, फिर आपका क्या आ गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट वेजेस आ गया, एब्सॉर्ब हो गया। कहां पर एब्सॉर्ब हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्टिंग पीएनएल को ट्रांसफर किया, कॉस्टिंग पीएनएल को कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, एबनॉर्मल आइटम्स भी आ जाएंगे वहां पर, फिर आपका सेल्स आ जाएगा और आ जाएगा प्रॉफिट। आर यू क्लियर विद द फ्लो ऑफ अकाउंटिंग? आर यू क्लियर? दिस इज हाउ द एंट्रीज मूव। अब ये एक बार समझ गया तो आप क्या कर सकते हो, बुक में से जर्नल एंट्रीज पढ़ सकते हो। मैंने आगे जाके जर्नल एंट्रीज भी दी है, एक बार जर्नल एंट्रीज देखते हैं। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होने वाला है? इंटीग्रेटेड सिस्टम में जीएलए के जगह पे रिस्पेक्टिव अकाउंट आएगा। आप इंटीग्रेटेड फॉलो करो या नॉन इंटीग्रेटेड फॉलो करो, उससे आपके प्रॉफिट को फर्क नहीं पड़ता, बट सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपको दो प्रॉफिट मिलता है। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम यू हैव two figures of profits. Which are the two figures of profit? Profit as per accounting system, financial accounting, and a profit as per cost accounting. दोनों का प्रॉफिट सेम होता है क्या? इसलिए क्या करना पड़ता है? रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। करेंगे आगे रिकंसिलिएशन। नॉ इंटीग्रेटेड सिस्टम में रिकंसिलिएशन का जरूरत है क्या? इसके ऊपर थियरी क्वेश्चंस आता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटीग्रेटेड सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये टंट वाली चीजें जो होती है ना, ये दिमाग, दिस इज टंट थिंग प्योर। अकाउंटिंग सिस्टम, इफ यू अंडरस्टैंड द कोर, सी कॉस्टिंग शुड बी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देन डायरेक्टली अ लार्ज चंक ऑफ कॉस्टिंग शुड फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग रादर देन कैलकुलेटिंग। सी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अब बोलो ना यार ऐसे मटेरियल कॉस्ट, बेसिक प्रिंसिपल क्या था? अबनॉर्मल नॉर्मल, एक कोर प्रिंसिपल था बस। ओवरहेड का क्या होता है उसके ऊपर एक ऐसे लिखो, बस खत्म। आप 50 प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हो ओवरहेड के ऊपर, चल अब्सॉर्प्शन कर, ये कर, वो कर, इतना डिटेल में जाते हो ना, और डिसीजन मेकिंग को हम आते ही नहीं फिर, क्योंकि अपना टाइम ही खत्म होता है तब तक। जाने दो। तो माय पॉइंट इज, इफ यू फॉलो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम यू विल हैव टू हैव अ रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो परचेस ऑफ मटेरियल, नॉन इंटीग्रेटेड में एंट्री क्या था? स्टोर्स लेजर टू जीएलए, उधर क्या है? स्टोर्स लेजर टू क्रेडिटर ऑब्लिक कैश। परचेस ऑफ मटेरियल फॉर डायरेक्ट यूज इन जॉब। अब यही बोलेंगे डायरेक्ट यूज मतलब क्या है? डायरेक्ट यूज का मतलब ये है, सर आप स्टोर्स लेजर में लेके ही नहीं आ रहे हो उसको, आप उसको स्टोर्स में लेके नहीं आ रहे हो, डायरेक्ट मटेरियल शॉप फ्लोर पे गया, स्टोर्स में इन्वर्ट हुआ क्या?
नहीं हुआ तो डायरेक्टली जॉब को डेबिट करना, रिस्पेक्टिव जॉब डेबिट। लेकिन रिस्पेक्टिव जॉब का रोहित शर्मा है अपने पास, क्या नाम है वो रोहित शर्मा का, WIP अकाउंट। या रिस्पेक्टिव जॉब का अपने पास नरेंद्र मोदी जी है, कैप्टन ऑफ इंडिया। सो WIP अकाउंट डेबिट। अदानी नहीं, अदानी इज व्हाट 11th बॉय जो पानी वगैरह वाटर बॉय। WIP अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, थोड़े दिन तक टीम में है शायद। WIP अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। हो मतलब देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, टेक इट विद अ लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट। सो WIP अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। और यहां पर क्या है, WIP अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर मटेरियल परचेस किया फॉर व्हाट, रिपेयर वर्क, डायरेक्टली स्टोर्स में आया क्या, सी एक सिंपल लॉजिक है, स्टोर्स में मटेरियल आया तो स्टोर्स लेजर को डेबिट कर। ये मटेरियल कहां पर गया, डायरेक्टली यूज किया, किसके लिए, रिपेयर के लिए। दिस मटेरियल इज यूज डायरेक्टली फॉर रिपेयर, तो कहां पे डेबिट करेंगे हम, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू व्हाट, GLA। रिटर्न ऑफ मटेरियल रिवर्स एंट्री, पेमेंट टू क्रेडिटर, नो एंट्री हियर, देयर इज एंट्री क्रेडिटर टू बैंक। फिर मैंने मटेरियल इशू किया, WIP टू स्टोर्स लेजर। फिर मटेरियल इज इशूड फॉर कैपिटल ऑर्डर, कैपिटल ऑर्डर मतलब फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, नॉट फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। मटेरियल इशूड फॉर कैपिटल ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय इट, अरे व्हाट डू यू मीन, मटेरियल इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट, कुछ तो असेट है जिसके लिए आपने मटेरियल इश्यू किया है। एंट्री क्या किया मैंने, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर्स लेजर। ये फाइनली कैपिटल WIP किधर जाएगा, फिनिश गुड्स, फिक्स असेट को जाएगा। कहां पे जाएगा, फिक्स असेट। लेकिन हम फिक्स असेट मेंटेन कर रहे हैं क्या, नहीं, तो किधर जाएगा, GLA को। समझा गया, कैपिटल WIP टू स्टोर्स लेजर। फिर इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पे इश्यू हो जाएगा, आइदर फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू व्हाट, स्टोर्स लेजर, है ना। ये आपने इश्यू कर लिया, रिस्पेक्टिव ओवरहेड को इश्यू कर लिया। फिर रिटर्न ऑफ मटेरियल रिवर्स एंट्री, रिटर्न ऑफ मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल रिवर्स एंट्री, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रिसीविंग जॉब टू सेंडिंग जॉब। हम कोई भी जॉब का अकाउंट ही ओपन नहीं कर रहे हैं, क्यों, हम सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं, बस कैप्टन देख रहे हैं या रोहित शर्मा को देख रहे हैं हम, इंडिविजुअल जॉब का अकाउंट है क्या, तो हम नो एंट्री फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। अब नॉर्मल लॉस हो गया तो कॉस्टिंग P&L टू स्टोर्स लेजर। फिर वेजेस हमने पे किए, वेजेस टू GLA। फिर उसमें से कुछ डायरेक्ट वेजेस है WIP को जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड को जाएगा, एडमिन ओवरहेड को जाएगा, सेलिंग ओवरहेड को जाएगा। इफ वेजेस आर इंकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, वेजेस विल गो टू व्हाट, कैपिटल WIP अकाउंट। समझ रहा है ना, पूरा फ्लो एक्सप्लेन किया था मैंने यार। फिर आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करते हो, रिस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA, उधर बैंक आएगा GLA की जगह पे। फिर आप ओवरहेड एब्सॉर्ब करते हो, एब्सॉर्ब करने के लिए क्या बोला मैंने, एंट्री, ओवरहेड एब्सॉर्ब मतलब ओवरहेड अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड वेयर डू यू डेबिट, डेबिट इज टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो यहां पर कौन सा ओवरहेड एब्सॉर्ब हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड, WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। देन ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फैक्ट्री कॉस्ट पे गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगे, कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, WIP से FG में जाएंगे, तो FG अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। AOHP एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स कहां पर एब्सॉर्ब हो जाएंगे, फिनिश गुड्स के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड। आर यू क्लियर, फिनिश गुड्स टू एडमिन, आर यू क्लियर। फिर COGS ट्रांसफर हो जाएगा किधर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिर सेलिंग ओवरहेड्स एब्सॉर्ब हो जाएंगे, फिर सेल हो जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर हो जाएगा। अंडर एब्सॉर्प्शन है तो कौन सा बैलेंस रहता है ओवरहेड में, अंडर एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ओवरहेड में डेबिट है तो ओवरहेड को आप क्या करोगे, क्रेडिट दोगे, डेबिट कहां पे दोगे, डिपेंड्स, कॉस्टिंग P&L एबनॉर्मल रीजन, नॉर्मल रीजन है तो FG WIP कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय कैलकुलेटिंग सप्लीमेंट्री
overhead suspense account. If you want to carry forward overheads from 1 year to next year, we use an account called as overhead suspense account. Or you can do nothing, just write buy balance carried forward. A to balance carried forward, जो भी है, depending on is it a debit balance or is it a over absorption, reverse the entry. फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. अरे हमने सीडब्ल्यूआईपी को डेबिट किया था. सीडब्ल्यूआईपी इज व्हाट, असेट्स कंस्ट्रक्टेड बाय अस. असेट कंस्ट्रक्टेड के लिए हमने क्या किया, पहले मटेरियल इशू किया, फिर क्या इशू, वेजेस इंकर किए. मटेरियल वेजेस को डेबिट करना, मतलब वहां पर हमने सीडब्ल्यूआईपी को डेबिट करके मटेरियल वेजेस को क्रेडिट किया था. अब क्या करो, सीडब्ल्यूआईपी को क्लोज करो. व्हाट इज एंट्री? एंट्री इज फिक्स असेट टू सीडब्ल्यूआईपी. बट फिक्स असेट है क्या अपने पास? तो क्या है अपने पास? जीएलए टू सीडब्ल्यूआईपी. ट्राई, डू नॉट मग अप एनी एंट्री प्लीज. जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिकल फ्लो ऑफ द एंट्रीज. इट्स वेरी इजी यार. तो ये अंडर ऑब्लिक ओवर अब्सॉर्प्शन के आपको अलग अलग एंट्री चाहिए, तो मैंने वही एंट्री स्प्लिट करके दिया है. आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अंडर अब्सॉर्प्शन, नो एंट्री. नो एंट्री मतलब जस्ट कैरीड फॉरवर्ड ना. कैरी फॉरवर्ड के लिए जर्नल एंट्री नहीं लगता है, लेजर का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. लेकिन आपको बहुत खुजली है एंट्री पास करने का ही मेरे को, मैं टंट हूं. रिस्पेक्टिव ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, मतलब इन लोगों को ऐसा, मतलब पार्डन माय वर्ड्स बट दीस पीपल इरिटेट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अरे क्यों क्यों तेरे को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है? व्हाई द हेल यू वांट टू पास अ एंट्री? लेकिन आप बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड ना. रिस्पेक्टिव सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस है और नेक्स्ट ईयर में वो एंट्री रिवर्स करने का वापस. ऐसे इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ बैलेंस इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, यू ट्रांसफर अ बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट. यू ट्रांसफर अ बैलेंस टू विच अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट. कुछ कर नहीं सकते, टंट लोग हैं हम. ट्रांसफर टू व्हाट? कॉस्टिंग पी&एल अगर एबनॉर्मल है तो. और सप्लीमेंट्री रेट है तो क्या करेंगे हम? WIP FG कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन विच रेशो ऑफ equivalent units. Please remember, do not take what? Physical units. Take which units? Use of what? Supplementary rate. In which case you use supplementary rate? Normal under absorption है तो. ठीक है. अब आते हैं हम लास्ट आइटम को चैप्टर का, रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन का जरूरत कब पड़ेगा तुमको? जब आप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करते हो तब. क्यों पड़ता है? क्योंकि दोनों जगह पे एक्सपेंसेस सेम नहीं रहते हैं, दोनों जगह पे इनकम सेम नहीं रहता है, दोनों जगह पे डिफरेंस रहता है. ऑन योर स्क्रीन लुक एट इट. कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफरेंसेस. 3 parts. Items which are recorded in costing only but not in financial accounts. For example, in costing you might consider opportunity cost. There is no such thing in फाइनेंशियल बुक्स. फाइनेंशियल बुक्स में हम सिर्फ क्या लेते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लेते हैं. नेक्स्ट, आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन कॉस्टिंग. फाइनेंशियल अकाउंट में इंटरेस्ट आता है, इनकम टैक्स आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट आता है, इंटरेस्ट इनकम आता है, डिविडेंड इनकम आता है ना. कुछ कुछ गधों लोगों ने, मतलब आईसीए में तो जो क्वेश्चंस आए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आईसीए का कोई आदमी सुन रहा है माफ करना, तुम लोगों ने डिविडेंड को भी पी&एल को डेबिट किया. थोड़ा बहुत इज्जत रखो अपने प्रोफेशन की. डिविडेंड इज डेबिटेड टू पी&एल अप्रोप्रिएशन, इट इज नॉट आइटम ऑफ एक्सपेंस. रिजर्व्स भी डेबिट किए रे कुछ कुछ क्वेश्चंस में तुमने पी&एल को. वो जनरल रिजर्व जो रहता है ट्रांसफर, वो पी&एल अप्रोप्रिएशन में जाता है, मालूम है तुमको. और फिर नेट प्रॉफिट निकालते बेशरम जैसा. सेल्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या लिखते हैं? डिविडेंड. एक्सपेंसेस में क्या लिखते हैं? जनरल रिजर्व. और फिर नीचे लिखते हैं नेट प्रॉफिट. प्लीज रिमेंबर दैट इज दैट दे माइट से नो वी वांट टू मेक श्योर दैट यू आर शार्प, यू अंडरस्टैंड एरर्स आल्सो. अरे जो एरर कभी होने वाला नहीं है वो क्यों क्यों समझने का? जिस गली में मैं कभी जाने वाला नहीं, उस गली को मेरे को नहीं समझने का है, वो गली दूसरे के लिए है. व्हाई जनरल रिजर्व पी&एल को डेबिट हो गया? क्यों तुम बच्चों को इरिटेट करते हो यार? सिखाना पड़ता है.
तो क्या होता है, पीएनएल में जनरल रिजर्व भी आता है, मालूम है, पीएनएल में डिविडेंड डिक्लेयर भी आता है एग्जाम में, रियल लाइफ में नहीं। तो ये आइटम्स कुछ पीएनएल को डेबिट होते हैं, कुछ आइटम्स पीएनएल, मतलब जो बंदा वहां पर काम कर रहा है ना, वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, पैसा ले रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, पीएनएल को डेबिट हो गया लेकिन कॉस्टिंग में है ही नहीं ना ये आइटम, या पीएनएल को क्रेडिट हो गया, कॉस्टिंग में है ही नहीं। कितने डिफरेंसेस है बच्चों, 3 डिफरेंसेस है कॉस्टिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ब्रॉड लेवल पे 3 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंसेस है। दिस इज लाइक अ बीआरएस। पहले डिफरेंसेस समझो, पहला डिफरेंस क्या बोला, आइटम्स इन कॉस्टिंग बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट, आइटम्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट नॉट इन कॉस्टिंग, है ना। थर्ड कैटेगरी ऑफ डिफरेंस, आइटम्स एट बोथ द प्लेसेस बट अमाउंट्स आर डिफरेंट। ये थर्ड आइटम अच्छा है। डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, मेरे को कॉस्टिंग में मेरे को मशीनर रेट मेथड फॉलो करने का है, या मेरे को डिप्लीशन मेथड फॉलो करने का है, मेरे को कुछ अलग मेथड फॉलो करने का है, कर सकता हूं क्या, हाँ। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट दोनों जगह पे है लेकिन अमाउंट अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीएनएल में ओवरहेड्स क्या आते हैं, ओवरहेड्स इंकर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड्स incurred, absorbed, incurred goes to P&L, absorbed is in costing P&L। डिफरेंस कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। डिफरेंस अंडर ऑब्लिक कॉस्टिंग में ओवरहेड एब्सॉर्ब आता है, जब कॉस्ट शीट बनाते हो या जब भी आपने एंट्री पास किया, डब्ल्यूआईपी में क्या गया था, ओवरहेड एब्सॉर्ब। अब डिफरेंस का क्या हो रहा है ये समझना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आएगा। लिसन केयरफुली, in financial accounting you have overhead incurred in P&L, in cost accounting you have overheads absorbed in cost sheet. Difference is under oblique over absorption. Now if this under oblique over absorption is carried forward to next year, obviously दोनों का प्रॉफिट मैच नहीं होगा। So if under oblique over absorption is carried forward, difference of the profit will not match. Profit will not match. Difference नहीं, profit will not match, मतलब reconciliation में आएगा, समझा क्या रे। नंबर 2, सेकंड, overhead incurred 5 लाख, absorbed 3,95,000. Situation 1, difference carried forward. If the difference is carried forward, under oblique over absorption is carried forward, then it will come in reconciliation. UAOA carried forward, it will come in reconciliation. Second one, difference between what, overhead incurred and overhead absorbed is debited to costing P&L. If it is debited to costing P&L, बच्चों दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहेगा। क्यों डिफरेंस नहीं रहेगा, there is no difference between the two. Why? Because now amounts are same ना। यहाँ पे 5 लाख था ओवरहेड इंकर्ड, ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड वाज 395 और 1,05,000 भी मैंने पीएनएल को, कॉस्टिंग पीएनएल को डेबिट किया, तो दोनों जगह पे 5-5 लाख हो गया ना। सो बच्चों, इफ अंडर ऑब्लिक ओवर अब्सॉर्प्शन इज डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल, if it is debited to costing P&L, then it will not appear in reconciliation statement. If it is carried forward, then it will appear in reconciliation statement. Are you clear? There is one more. If it is normal under oblique over absorption, then it has become very difficult. ये अभी तक जिंदगी में आया नहीं, 1949 से लेके अब तक। कब से कब तक नहीं आया, इंस्टीट्यूट फॉर्म होने से अब तक नहीं आया है, बट आ सकता है। यू शुड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कंसेप्ट सुन लो, देखो ओवरहेड मेरे इंकर्ड कितने, एग्जांपल में मैंने कितना लिया रे, 5 लाख। ओवरहेड एब्सॉर्ब कितने लिए मैंने, 3,95,000 ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड है।
डिफरेंस कितना है दोनों का? ₹1,05,000 is what? Overheads under absorption. अब let's assume debited to WIP. Debited to what? WIP अकाउंट, मतलब अंडर अब्सॉर्प्शन है। ओवरहेड अकाउंट में डेबिट 5 लाख है, क्रेडिट 395 है, और हमने 1,05,000 को नॉर्मल ट्रीट कर लिया। मैंने WIP को डेबिट किया 15,000, ऐसे ही अज्यूम करो। FG को डेबिट किया 20,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट किया 70,000। समझा करेगा तुमको कुछ? हाँ ना? गुड। अब रिकंसिलिएशन में कितना आएगा? रिकंसिलिएशन में सिर्फ इतना आएगा। दिस will come in reconciliation. This is important, huh? This will come in a reconciliation. This will not come रिको मतलब रिकंसिलिएशन। अब बोलेगा ऐसा कैसे सर? जो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट किया वो अल्टीमेटली कॉस्टिंग पीएनएल को डेबिट किया ना, तो वो जो 70,000 है वो तुमने कॉस्टिंग पीएनएल को डेबिट किया और पीएनएल में तो डेबिट हो ही। और समझ रहा है क्या? डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? WIP और FG का वैल्यूएशन अलग अलग है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने ये 15,000 और 20,000 जो है वो कंसिडर नहीं किया है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। सो डिफरेंस आएगा सिर्फ इतना। WIP और FG के वैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कुछ समझा क्या? ये 70,000 रिकंसिलिएशन में नहीं जाएगा, ये जाएगा रिकंसिलिएशन में, बट ये रिकंसिलिएशन में ऑटोमेटिक आता ही है, इन्वेंट्री का वैल्यूज डिफरेंट होता है तब। तो ऑन योर स्क्रीन वापस, डिफरेंस इन कॉस्टिंग एंड P&L, आइटम्स इन कॉस्टिंग बट नॉट इन P&L, आइटम्स इन P&L बट नॉट इन कॉस्टिंग। ये दोनों कैटेगरीज बहुत आसान है, क्यों? एक्सक्लूसिवली एक जगह पे ही है, कॉम्प्लिकेटेड थर्ड वाला चीज है दोनों जगह पे, लेकिन अमाउंट अलग है। उसके 3 की कैसे एग्जांपल है? 3 में से एक आसान है, सिर्फ डेप्रीसिएशन बहुत आसान है। दोनों में क्या होता है? अमाउंट का डिफरेंस रहता है, तो यू शुड नो टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। कैसे वो बताता हूं मैं, हैव पेशेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? ओवरहेड्स, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और तीसरा डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का अमाउंट जो रहता है कॉस्टिंग में अलग रह सकता है, फाइनेंशियल्स में अलग रह सकता है, बिकॉज द वैल्यूएशन के लिए जो कॉस्ट कंसिडर किया वो दोनों अलग अलग है। तो इसको ट्रीट कैसे करने का देखो। पहले एनालाइज द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस एक बार आइडेंटिफाई किए ना, रट्टा मत मारो, सिंपल लॉजिक लगाओ। ये लॉजिक मैंने यहां पे लिखा है, कॉमन सेंस इश्यूज ऑन प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन। पहला चीज BRS के जैसा ही है। BRS में आप क्या बोलते थे? कैश बुक, पासबुक। इधर हम बोलेंगे कॉस्टिंग P&L, फाइनेंशियल P&L, ऐसे 2 सेट्स है अपने पास। एनालॉजी समझ लो। फिर BRS में आप फेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बोलते थे, इधर क्या है? प्रॉफिट और लॉस। BRS में आप, हाँ ये अच्छा है, पैसा डिपॉजिट किया बैंक में या पैसा बैंक से विड्रॉ किया, डिपॉजिट या विड्रॉवल बोलते थे आप BRS चैप्टर में, 11th स्टैंडर्ड में या फाउंडेशन अगर गलती से सीखा होगा तो। कॉस्टिंग में क्या बोलते हैं? इनकम और एक्सपेंस। कॉस्टिंग में यहां पर रिकंसिलिएशन के लिए हम क्या बोलने वाले हैं? इनकम एंड एक्सपेंस। BRS में आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ओके छोड़ दो अभी BRS। स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। यहां पर भी 4 है, कॉस्टिंग प्रॉफिट या कॉस्टिंग लॉस आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी फाइनेंशियल प्रॉफिट और फाइनेंशियल सेटलमेंट के हिसाब से लॉस। समझा? नेक्स्ट, what should be the sign of starting point? Now this is important, many students make a mistake, starting point loss है तो माइनस लिखते हैं, खत्म, पास नहीं होगा तू। स्टार्ट 8 मार्क गए तेरे। स्टार्टिंग पॉइंट should be assumed to be positive even if it is a loss. Starting point is a simple, what we want to analyze is we want to give a sign to every difference. How do we decide a sign? Now this is important. How do we decide a sign? मतलब जो भी डिफरेंस है, क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस है, आपको क्लोजिंग स्टॉक को प्लस या माइनस का साइन डिसाइड करना है। कैसे?
बहुत बेसिक लॉजिक देखो, वी अज्यूम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और सेम अमाउंट ऑफ लॉस एज पर बोथ द बुक्स। फिर आप बोले सर प्रॉफिट लू या लॉस लू, दैट डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है तो अज्यूम करो दोनों जगह पे प्रॉफिट प्रॉफिट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट लॉस है तो अज्यूम करो दोनों जगह पे लॉस है। आई होप यू नो स्टार्टिंग पॉइंट ना, मतलब उतना बीआरएस का एनालॉजी आपको मालूम होना चाहिए। इट इज रिवीजन, इट इज अज्यूम दैट यू हैव विजन। सो assume that both the books have same profit or a same loss as per starting point। ठीक है, फिर क्या करो, आइटम को जाके पूछो, हे आइटम आर यू आइटम ऑफ इनकम और आर यू आइटम ऑफ एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक इज आइटम ऑफ इनकम, ओपनिंग स्टॉक इज आइटम ऑफ एक्सपेंस। माते 90 डिग्रीज, ये माता इधर की 90 डिग्रीज स्ट्रेट। Item, are you item of income or are you item of expense? Anything that comes on a credit side is income. Anything that comes on debit side, expense. Closing stock is, opening stock is, next year's opening stock is expense. Moment I say opening stock, it is the expense. कौन से क्या करना क्या है तुमको? तो आइटम को क्या पूछा हमने, आर यू आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे आइटम वेयर आर यू रिकॉर्डेड। आइटम बोलता है आई एम रिकॉर्डेड एट बोथ द प्लेसेस। ओके, टेल मी द अमाउंट विथ विच यू आर रिकॉर्डेड। अमाउंट माइट बी डिफरेंट ना, और इट माइट बी देयर एट ओनली वन प्लेस। तो पहला चीज क्या है, वी अज्यूम सेम प्रॉफिट। नंबर टू, वी कंसिडर इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आइटम मतलब ट्रांजैक्शन, ऑन प्रॉफिट लॉस एज पर बोथ द बुक्स। तो मतलब क्या करने का, अज्यूम कॉस्टिंग प्रॉफिट, पी एंड एल प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट। अज्यूम करो दोनों में प्रॉफिट है। इफ आइटम इज ऑफ इनकम, प्रॉफिट विल गो अप, बट एज पर विच बुक, वो पूछने का आइटम को, तू कहां पर है। आइटम बोला मैं दोनों जगह पे। तो लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, पी एंड एल में क्लोजिंग स्टॉक है 70,000। तुम्हारा क्या जाता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट, पी एंड एल प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट। कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितने से बढ़ाने का, 50, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज आइटम ऑफ इनकम। क्लोजिंग स्टॉक, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, हे आइटम आर यू आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंस। आइटम ने क्या रिस्पॉन्स दिया, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितने से बढ़ा 50, पी एंड एल का प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा 70। फिर क्या करो, गो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग लोअर फिगर टू पी एंड एल हायर फिगर, लो टू हाई एड, या अगर पी एंड एल से कॉस्टिंग जा रहे हो हाई टू लो लेस। सो वी गो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट टू डिसाइड अ साइन ऑफ डिफरेंस। तो ऐसा हर एक आइटम को क्या करेगा तुम, साइन लगाएगा। क्या साइन लगाएगा, प्लस या माइनस, समझा करे। लेट्स अज्यूम योर स्टार्टिंग पॉइंट इज लॉस, स्टार्टिंग पॉइंट इज, एंड क्लोजिंग स्टॉक एज पर कॉस्टिंग इज 50, क्लोजिंग स्टॉक एज पर पी एंड एल इज 70। कॉस्टिंग लॉस, पी एंड एल लॉस, लॉस लॉस। भगवान ने हाथ नहीं देकर तेरे को है बेटे, शर्म। अगली बार अगर हाथ नीचे दिखा ऐसा कमेंट मारेगा तेरे को, पी एंड कॉस्टिंग लॉस, पी एंड एल लॉस, लॉस लॉस। सेम है, हे आइटम आर यू आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस। इनकम, क्यों रे, क्लोजिंग स्टॉक है, इनकम रिकॉर्ड किया तो लॉस बढ़ता है लॉस कम होता है, लॉस कम होता है। वेरी गुड। तो कॉस्टिंग का लॉस कम हो गया 50,000 से, फाइनेंशियल्स का लॉस कम हो गया 70,000 से। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट रुको, कॉस्टिंग टू पी एंड एल जा रहा है लेस, या पी एंड एल से कॉस्टिंग जा रहे हैं एड। इट्स दैट बेसिक है, समझा करे। बेसिक्स, ड्यू टू इनकम प्रॉफिट गोज अप एंड लॉस कम्स डाउन। So income has positive relationship with profit and inverse relationship with loss. Expense, inverse relationship with profit and positive relationship with loss. उतना बेसिक होना चाहिए। तो क्वेश्चंस क्या पूछने का है, हे आइटम आर यू अ आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे आइटम वेयर आर यू रिकॉर्डेड एंड विथ व्हाट अमाउंट आर यू रिकॉर्डेड, एंड देन डू करने का आपको। फिर एंड पॉइंट साइन, स्टार्टिंग पॉइंट का साइन क्या था,
पॉजिटिव, एंड पॉइंट का साइन पॉजिटिव रहेगा ऐसा जरूरी, स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव, कुछ ऐड के आइटम्स आएंगे, कुछ लेस के आइटम आएंगे, एंड पॉइंट का साइन पॉजिटिव रह सकता है या नेगेटिव रह सकता है। इफ एंड पॉइंट साइन इज पॉजिटिव, नेचर ऑफ एंड पॉइंट इज सेम एज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट था तो एंड पॉइंट भी प्रॉफिट रहेगा, स्टार्टिंग लॉस था तो एंड भी लॉस रहेगा, बट स्टार्टिंग कॉस्टिंग था तो एंड कॉस्टिंग नहीं हो सकता, एंड पी एंड एल होगा। स्टार्टिंग पी एंड एल था तो एंड कॉस्टिंग होगा। स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं हो सकता, या स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड पॉइंट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ऐसा मारेगा ना सर तेरे को, स्टार्टिंग तेरा कैश बुक का तो एंड क्या था, पासबुक, है ना। साइन निगेटिव है, निगेटिव मतलब नेचर ऑफ एंड पॉइंट इज अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। इफ स्टार्टिंग वाज प्रॉफिट, एंड विल बी लॉस। आर यू क्लियर? और एक ये एक्सपेक्टेड है दिस एग्जाम, ये जो स्टेटमेंट था ना मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट, कैसे बनाते रहे हम, ऑन योर स्क्रीन मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, बैलेंस, बैलेंस नहीं अभिषेक, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग डॉट 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 एड लेस देयरफॉर प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। ये स्टेटमेंट फॉर्म के अलावा टंट लोगों को बहुत खुजली होती है, वो लोग क्या करते हैं, इसको लेजर अकाउंट के फॉर्म में लिखने का, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, दिस इज नॉट अ अकाउंट। बच्चा पूछा सर ये डेबिट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है सर, ये नॉमिनल अकाउंट है, इतना मारेगा ना, ये अकाउंट ही नहीं है। हर चीज को अकाउंट जिधर बोलते हैं वो उसको अकाउंट नहीं बोलते, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अकाउंट। तो क्या करने का, ये जस्ट अ प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट मैनर। डेबिट साइड पे हम लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, आइटम्स हैविंग प्लस साइन, जितने भी प्लस साइन वाले आइटम है उनको कहां पे लिखेंगे, डेबिट पे लिखेंगे। उसकी गोद में क्यों बैठा है तू, थोड़ा जरा गैप रखना। क्रेडिट साइड आइटम्स हैविंग माइनस साइन हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब बोलो मुझे, ये अकाउंट का आंसर डेबिट आ सकता है, क्रेडिट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। डेबिट आ गया मतलब पॉजिटिव साइन है, क्यों, इसका साइन क्या था, पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस निगेटिव। अगर डेबिट बैलेंस है, एंड पॉइंट कैन बी ईदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है मतलब नेचर ऑफ एंड पॉइंट इज सेम एज स्टार्टिंग पॉइंट, और क्रेडिट बैलेंस है तो नेचर ऑफ एंड पॉइंट इज अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। ये तुम जो मिस्टेक करते हो वो लिखा है मैंने, हो गया। और क्या है, तो व्हाट इज कॉस्ट लेजर अकाउंट, ऑन योर स्क्रीन कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग चैप्टर, 3 पार्ट्स, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का एंट्रीज, इंटीग्रेटेड सिस्टम का एंट्रीज, रिकंसिलिएशन अकाउंट। आर यू क्लियर? इट्स वेरी इजी। सो there are 2 doubts which are asked, okay, अभी बोल रहा है मिस्टर प्रोफेसर, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, I want to know when you will start with accounting revision. Once we finish costing revision, we'll start soon. I'll update you beta. We'll have, but दिन में मेरा उतना ही टाइम मेरे पास अवेलेबल है, तो उतने में मैं ले रहा हूँ। सर इन एंट्री नंबर 15, why are expenses debited directly to overhead control account and not to WIP account? एंट्री नंबर 15 क्या है, अरे 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 अरे, शर्विन भोसले जी देखिए, पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है बेटा, डब्ल्यूआईपी को डेबिट नहीं होता। यू हैव पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड, दिस इज ओवरहेड इंकर्ड बेटा, दिस इज ओवरहेड इंकर्ड। डब्ल्यूआईपी को कब जाएगा, वो ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, क्योंकि इंकर्ड ओवरहेड, आई डोंट नो जॉब बाय जॉब मिस्टर भोसले, if I know overhead job by job, why will you call it as a overhead? It is called as what? Direct expense ना. The fact that it is a overhead, indirect expense मतलब overhead है, overhead मुझे job by job मालूम ही नहीं होता ना बेटा, तो इसीलिए तो पूरा मतलब मॉरल, चला पूरा रामायण हो गया और तू बोलता है सीता कौन थी, पूरा overhead चैप्टर एक्सप्लेन किया। Overheads are not known job by job, overheads are known on totality basis. ओवरहेड इंकर्ड
I hope you understood, Mr. Bosle. So that's why I debited overhead to the overhead account, and from overhead account they go to WIP account through overhead absorption. देख ना अगला एंट्री 16 नंबर का एंट्री में WIP पे गया ना, बट WIP में वो absorption होता है. I hope, Mr. Bosle, you are there and you understood it. If not, it's okay. Anyone else has a doubt? Chapter is over. Tomorrow which chapter is it? Contract costing. हाँ अच्छा चैप्टर है. मतलब मैं अगर बोलूं तो इस बार का एक्सपेक्टेड चैप्टर 5 मार्क वो तो कंसिस्टेंट है ही. ये कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग का भी कंसिस्टेंसी बहुत खतरनाक है. 10-10 मार्क का था. अपने बुक में चार्ट दिया, आपने देखा होगा तो. सो विल डू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टुमारो. क्या बोले? फाइन क्या बोले?